students, today we will talk about a very interesting topic that is about and that is in pharmacology, antagonist. So we will discuss antagonist in detail. We have a different type of antagonist, competitive and non-competitive based on mechanism, and even we have a type of antagonist like physical antagonist, chemical antagonist, physiological antagonist and pharmacological antagonist. So first, as we have discussed in the previous lecture, that antagonists have no intrinsic activity, means no pharmacological effect, only it decreases the effect of agonist. We have already studied about the example. There are so many examples of antagonist. One which I have quoted here is atropine, which is antagonizes the M1, M2 and M3 muscarinic receptor. So this is the basic thing that we have discussed earlier. Now, as we know the different types of antagonists, so first we will talk about the physical antagonist. Physical antagonist means, here we will put the example like charcoal. Charcoal does not produce any chemical reaction or any another kind of reaction. Only charcoal perform their action by a physical presence, because charcoal, let's suppose if anyone have taken a poison which is containing alkaloidal agents, so once when we will take when that person take charcoal for antagonizing the पॉइजनस एक्शन, तो चारकोल क्या करेगा, उस एल्कलॉइड के एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करेगा. तो एल्कलॉइड यहाँ पे हमारा एज ए एगोनिस्ट हुआ और चारकोल एज ए एंटागोनिस्ट. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फिजिकल एंटागोनिस्ट. नाउ वी विल टॉक अबाउट केमिकल एंटागोनिस्ट. केमिकल एंटागोनिस्ट में जो रिएक्शन होगी दैट इज ड्यू टू द केमिकली, दैट केमिकल रिएक्शन, तो कंबाइंड विद सब्सटेंस लाइक केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होगा. फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट की अगर हम बात करें, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि लाइक इसमें हमारे जो एंटागोनिस्ट होंगे वो एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट के साथ जो एगोनिस्ट, बट ऑब्वियस सी बात है कि एंटागोनिस्ट क्या करता है, एगोनिस्ट के फंक्शन को रोकता है. तो ज़्यादातर के केस में अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें ये पढ़ा कि एगोनिस्ट पर्टिकुलर किसी रिसेप्टर से बाइंड होता है और अपना फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है. फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट में हम बात करेंगे कि उस पर्टिकुलर एगोनिस्ट के लिए हम जो एंटागोनिस्ट उसके एगोनिस्ट के फंक्शन को रोकने की बात कह रहे हैं वो इस बेसिस पर कह रहे हैं कि यहाँ पे वो एंटागोनिस्ट उस पर्टिकुलर रिसेप्टर पर बाइंड नहीं होगा जिस पर एगोनिस्ट बाइंड होता है. लाइक अगर मैं बात करूँ, सपोज करिए कोई ड्रग है लाइक एड्रेनालिन, यहाँ एग्जाम्पल है, जो कि ब्रोंकोडाइलेशन करती है थ्रू द बीटा 2 रिसेप्टर, राइट. ब्रोंकोडाइलेशन करती है थ्रू द बीटा 2 रिसेप्टर एड्रेनालिन, बट हिस्टामिन प्रोड्यूसेस ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, दैट इज अपोजिट इफेक्ट ऑफ ब्रोंकोडाइलेशन, बट द रिसेप्टर इज डिफरेंट. हियर एड्रेनालिन इन्वॉल्व्स बीटा 2 रिसेप्टर while histamine involving H1 receptor. So this is the perfect example of physiological antagonist, means they will produce the opposite effect to the agonist but through the different receptor, right. Now we will talk about so adrenaline is a physiological antagonist of histamine. Now we will talk about pharmacological antagonist. Pharmacological antagonist means same like we have discussed, प्रोड्यूसेस अपोजिट एक्शन. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपोजिट एक्शन आ रहा है डिफरेंट रिसेप्टर में बाइंड होने की वजह से. यहाँ पे हम सेम रिसेप्टर की बात करेंगे. लाइक आप बीटा ब्लॉकर की बात करते हैं तो कोई ड्रग है एड्रेनालिन, वो बीटा 1 रिसेप्टर के थ्रू अपना एक्शन दे रही है, लेकिन अगर आप उसका एंटागोनिस्ट लेते हैं बीटा ब्लॉकर तो वो बीटा 1 पे ही एक्ट करके उस एगोनिस्ट के एक्शन को रोकेगी. मीन्स यहाँ पे सेम रिसेप्टर होंगे और फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट में हमारे रिसेप्टर डिफरेंट होंगे. दिस इज द ओनली डिफरेंस. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट physical antagonist, chemical antagonist, physiological antagonist and pharmacological antagonist. Now we'll talk about there are other classification of antagonist based on the mechanism, like in competitive antagonist and non-competitive antagonist. In competitive antagonist, further classification based on different author classify competitive antagonist two class. Competitive antagonist may be reversible type or it may be irreversible type. इसका जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से समझ लेना है बच्चों को, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है. क्योंकि देखिए कई बार अगर आप कम्पिटिटिव
कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट और नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट को दो तरीके से डिवाइड करता है। एक कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट को एक बार ये बोल देता है कि आपके कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में ये रिवर्सिबल टाइप का होता है, और नॉन कम्पिटिटिव को बोल देगा ये इरिवर्सिबल टाइप का होता है। लेकिन बेसिकली अगर हम कई ऑथर को पढ़ते हैं तो हमको पता लगेगा कि कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट भी अपने आप में दो टाइप का होता है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, जबकि नॉन कम्पिटिटिव में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की कोई कंडीशन नहीं होती, वहाँ केवल और केवल इरिवर्सिबल कंडीशन होती है। तो इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिए। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का जो कॉन्सेप्ट है किस बेसिस पे है, इसको सरमाउंटेबल क्यों कह रहे हैं, रिवर्सिबल को, इरिवर्सिबल को सरमाउंटेबल, इनसरमाउंटेबल क्यों कह रहे हैं। सरमाउंटेबल का मतलब होता है कि किसी चीज़ के अगेंस्ट, लेट सपोज कि आप किसी कहीं पे लेट सपोज कि आप किसी चीज़ के एक्शन को कम करना चाहते हैं, तो उस चीज़ के एक्शन के रिवर्सिंग को आप सरमाउंटेबल चीज़ कहोगे, और इनसरमाउंटेबल मतलब वो चीज़ रिवर्स नहीं हो सकती। तो लाइक कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में हम बात कर रहे हैं। कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट क्या करेगा, ये सेम रिसेप्टर पे बाइंड करेगा जहाँ पर एगोनिस्ट बाइंड करता है, और उस रिसेप्टर को क्या कर देगा, दो तरीके से एक्शन होगा। या तो ये क्या करेगा, उस रिसेप्टर पे बाइंड करेगा जहाँ पे एगोनिस्ट बाइंड होना है और एगोनिस्ट को बाइंड नहीं होने देगा, नंबर 1 पे रिएक्शन इस तरीके से देगा। नंबर 2 पे ये बाइंड करेगा कि आपका जो इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट है ये क्या करेगा, कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में बात कर रहे हैं, दो बात करेंगे, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल। कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट सिंपल क्या होगा कि सेम साइट ऑन रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं और रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं करते हैं, बल्कि एगोनिस्ट के बाइंडिंग को रोकते हैं। ये हो गया कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट की डेफिनेशन। अब हम उसमें रिवर्सिबल की बात करेंगे, तो रिवर्सिबल की जो बॉन्डिंग होगी रिसेप्टर के साथ वो नॉन कोवैलेंट होगी, वीक होगी। मीन्स अगर हम उस एंटागोनिस्ट के प्रेजेंस में एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाते हैं तो एंटागोनिस्ट का जो एक्शन है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। फिर से एक बार इसको कंक्लूजन देता हूँ कि हम अगर रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट के केस में रिसेप्टर से जो एंटागोनिस्ट जिसकी क्वालिटी है रिवर्सिबल एंटागोनिज्म देने की, वो हमेशा नॉन कोवेलेंटली इंट्रामोलिकुलर फोर्स से रिसेप्टर से बाइंड होगा। रिसेप्टर इटसेल्फ प्रोटीन मॉलिक्यूल, तो जो उनमें बाइंडिंग होगी एंटागोनिस्ट और रिसेप्टर की प्रोटीन मॉलिक्यूल के बीच, वो क्या होगी, इंटरमोलिकुलर वीक बाइंडिंग होगी, नॉन कोवेलेंट बाइंडिंग होगी। तो वो आसानी से क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, और जब डिसोसिएट हो जाएंगे तो दोबारा से एगोनिस्ट उस पर जाके बाइंड करके अपना एक्शन दे सकता है। मीन्स हम यहाँ पे एक्शन को क्या कर सकते हैं, रिवर्सिबल कर सकते हैं, राइट। इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट में हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो बाइंडिंग है नॉन कोवैलेंट थी, रिवर्सिबल में यहाँ पे कोवैलेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं। तो चूंकि यहाँ पे इनफ एनर्जी चाहिए, ये आसानी से ब्रेक नहीं होंगे, तो ये परमानेंटली क्या होते हैं, रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। और जब रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, आसानी से डिसोसिएट नहीं होंगे, और इनके डिसोसिएट होने की कंडीशन सिर्फ एक होगी कि जब ये परमानेंटली यूबिक्यूटिनेटेड होंगे और डिस्ट्रॉयड होंगे। यूबिक्यूटिनेटेड क्या होती है, कोई भी लाइक हमारे रिसेप्टर भी बनते और बिगड़ते रहते हैं, तो रिसेप्टर में भी सेल्स में एंडोसाइटोसिस की मैकेनिज्म होती है जो कि इंटरनलाइज्ड करके रिसेप्टर को ब्रेक डाउन करते हैं। तो जब वो स्टेप होगा तभी ये इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट जो होगा उस रिसेप्टर से डिसोसिएट होगा, अदरवाइज वो डिसोसिएट नहीं होगा। तो इरिवर्सिबल एंटागोनिज्म का कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें जो है बेसिकली हम कोवेलेंट इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस की बात करते हैं। इसमें लाइक इसके एग्जांपल को अगर कोट करें तो नैलोक्सोन इज यूज्ड टू रिवर्स ओपियाइड ओवरडोज। इन अ सेम वे जैसे कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में कैटेगराइज किया, नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में देयर इज नो एनी क्लासिफिकेशन लाइक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ओनली द क्लास विच इज हियर इज इरिवर्सिबल। सम टाइम हम नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट को इरिवर्सिबल एंटागोनिज्म भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो बाइंडिंग होगी एंटागोनिस्ट की वो पहली बात तो एलोस्टेरिक साइड पे होगी। कम्पिटिटिव में हम एक्टिव साइड पे बाइंड करा रहे थे, और नॉन कम्पिटिटिव साइड, एक्टिव साइड का मतलब जहाँ पे रिसेप्टर बाइंड, जहाँ पे एगोनिस्ट बाइंड होता है। नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में ये एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड होगा, और कई बार ये भी होता है कि ये एंटागोनिस्ट एक्टिव साइड पे बाइंड होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है कि नॉन कम्पिटिटिव में हमेशा एलोस्टेरिक साइड पे बाइंडिंग नहीं होती, नॉन कम्पिटिटिव में एक्टिव साइड पे भी बाइंडिंग होती है, बशर्ते कंडीशन एक होगी कि हर बार वहाँ पे
कोवैलेंट बॉन्ड होगा, और जब कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो वो डिसोसिएट आसानी से नहीं होगा, केवल उसका लास्ट फेट जो है वो इंटरनलाइज होके उसकी कंसंट्रेशन वहाँ पे कम होगी। इसके एग्जांपल की बात करें तो निकेथामाइड इज एन सॉरी कीटामाइन, यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ये कीटामाइन है। दिस कीटामाइन इज अ नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ द NMDA ग्लूटामेट रिसेप्टर। सो दिस इज ऑल अबाउट एंटागोनिस्ट एंड देयर टाइप्स। थैंक यू वेरी मच।